Founder, CEO, and Group Editor, Artocom Media Group, to kindly come on the stage with our dignitaries, Dr. S.K. Rathore, Founder, Chairman, and MD Sanford Group of Schools, and Gagan Agarwal, Head Academic Partnership, North and Central India, IBM Career Education. We have our guest of honor, Shehzad Alam IAS, Director, Employment and Skill Development, MD Mission Yuva, Government Jammu and Kashmir. Can we have a big round of applause, please? आइए चले अंधकार से प्रकाश की ओर, पृथ्वी से आकाश की ओर, पदार्थ से सूक्ष्म की ओर, प्राणी से परमात्मा की ओर, एक प्रयास अज्ञान से ज्ञान की ओर और ज्ञान से उन्नति की ओर. Thank you so much, everyone. Ladies and gentlemen, every summit begins with a spark of vision, of purpose, and of inspiration. Today, that spark comes from a leader who believes that conversations can create a change and connections can build the future. So I request our leader, Mr. Kumar Chandan Anand, founder, CEO, and group editor, Ardacom Media Group, to kindly come on the stage and please address the audience with the kind words. I request our dignitaries, Dr. S.K. Rathore, founder, chairman, and MD Sanford Group of Schools, to kindly come on the stage, with Gagan Agarwal, Head Academic Partnerships, North and Central India, IBM Career Education. Now I request our guest of honor, Shehzad Alam IAS, Director Employment and Skill Development, MD Mission, Yuva, Government of Jammu and Kashmir. I request sir to kindly present them a token of appreciation. Meanwhile, can we have a big round of applause, please? I request कि कोई भी तालियां बजाने में कंजूसी ना करे. Thank you so much, sir. I now request sir to kindly address the audience. अब जब सबने शायरी के साथ शुरुआत की है तो मैं भी I just quickly prepared a शायरी and this is my own and complemented with something from Google, but ये मेरा ही अपना रचना है, so kindly bear with me if I am in the sync to this शायरी. मंजिलें हमसे हैं लेकिन मंजिलों से हम नहीं, मंजिलें हमसे हैं लेकिन मंजिलों से हम नहीं, ऐ मंजिल तू रुक वहीं, चल पड़े हैं हम पथ पर, और जिस पथ पर हम चल पड़े हैं पत्थर है वो मलमल नहीं. और कहा जाता है कि मंजिल नहीं भी मिली तो कोई गम नहीं, मंजिल नहीं भी मिली तो कोई गम नहीं, रास्ते और सफ़र हमें बहुत कुछ सिखा देंगी, मंजिलें हमसे हैं लेकिन मंजिलों से हम नहीं. गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल and cheers to good health, happiness and prosperity. We all have gathered today to witness one of the finest events in education at this beautiful city of Jammu, which is also known as the winter capital of Jammu Kashmir. We have the dignitaries over here from Jammu Kashmir, from Leh Ladakh and the rest of India at this forum today. I, Kumar Chandan Anand, am blessed. I'm the founder, CEO, group editor of Ardacom Media. I welcome you all. Our chief guest of the day, Shri Surinder Chaudhary ji, Honorable Deputy CM, he'll be joining us anytime today. We have with us our guest of honor, Shehzad Alam ji, IAS. He's the Director, Employment and Skill Development, Mission and MD of Mission Yuva. We have with us our keynote speakers and special guest of the day, Dr. S.K. Rathore. He's the founder, chairman and MD of Sanford Group of Schools. We welcome you, sir. We have Mr. Gagan Agarwal. He's the Head Academic Partnership, North and Central India, IBM Career Education. We welcome you, Gagan. We also welcome our partner, government supporting partner, Jammu Kashmir Government, skilling partner, Mission Yuva, presenting partner, IBM, interactive display partner, Samsung, EdTech partner, Mastersoft, trusted AI enrollment technology partner, Merito, credential partner, TrueScholar, associate partner, Power School, associate partner, SAS, university partner, Labyrinth Tech Skills University, school partner, Sanford, and preschool partner,
Sanford Preschools. I welcome all the eminent speakers, invited guest delegates representing the education fraternity from Jammu Kashmir, Leh, Ladakh, and rest of India, as I said. I'm glad to see such a lovely gathering today, and thank you so much for making this so dull and brown hall so colorful and vibrant. Thank you so much. Can we have a huge round of applause for yourself? To introduce my organization, rather than in a speech, I would like to play two short videos which will give you a brief about what ADACOM is and what we are doing today at this event. Can we have a video, please? Let us have the event video. A short overview on how we started this media venture. When the overall industry was in a sailing phase of VUCA phase of existence and survival, where volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity was part and parcel of everybody's life. And during the peak second wave of COVID-19, where the companies were in a cost-cutting situations and shutting down their operations, loss of jobs and uncertainty could be witnessed by many of us. Our small foundation team dared to start our own media venture. We got this incorporated during that COVID peak season of COVID-19, and we named our media startup as Ador.com, where Ador means passion, zeal, and Com stands for community and communication. And our 5 core values are aspiration, reimagination, digitalization, opportunity, and readiness. You can abbreviate Ador like that. We were able to extend employment opportunities to the deserving young candidates, having strong will, skill, and zeal to work and outperform. Just to share a few of the story where how we started employing the manpower in our company. They were not IIM, IIT, or the top institutions passed out, sir. What I focused in hiring, where being an entrepreneur, as it was my first shoes of being an entrepreneur, I recruited the team myself. It was coming through the HR, and every resume, even the rejected resume, used to go through my eyes. And you know what column of the resume I used to focus? I have been in many of the big media houses of India. I have been working in many of the companies. The time I started my own company, none of the HRs were doing that thing. However, it's a very important segment in the CV. If you people are also in the same profile, you must be recruiting people in your organization. Which column do you prefer more? If I start from the desk over here.
कौन से कॉलम पर सर आप ज़्यादा फोकस करते हैं अगर किसी एम्प्लॉय को आपको रखना हो तो? एनीबडी कैन रेज हैंड एंड यू कैन से experience in education, right said sir, technological, moreover, breadth of experience. IBM is saying that, Stanford #1 preschool chains in India is saying that. And anybody a different answer to this, ma'am? Technological skill you can sing to sir. Okay, so I didn't focus to any of them, surprisingly. Being a media's um, startup company, I focused on the last page of the last segment, which was skills and hobbies. दैट वॉज द फोकस आई यूज टू मेक, क्योंकि मेरा अच्छा एजुकेशन नहीं था अच्छे इंस्टीट्यूशन से, मेरे पास वो एक्सपीरियंस या वो टेक्नोलॉजिकल एक्सपीरियंस नहीं था. ये तो कोविड के बाद से टेक्नोलॉजी का बूस्टअप शुरू हुआ है. आई वॉज सेइंग दैट कि जब टेक्नोलॉजी की वजह से ही ऑर्गेनाइजेशंस बंद हो रही थी उस समय क्या, सो उस समय स्किल्स, क्योंकि ये स्किल्स और हॉबीज की वजह से बच्चों को पिंक स्लिप दिखाया जा रहा था, उन लोगों को रास्ता दिखाया जा रहा था, क्यों तुमने टारगेट पूरा नहीं किया, तुम टाइम से नहीं आए, तुम्हारा पंचिन, नो मैटर व्हाट परफॉर्मेंस ही इज गिविंग टू द ऑर्गेनाइजेशंस फॉर द डे, वो पंचिन के वजह से उसको रोज हफ्ते में एक बार उसको सुनना पड़ता था विद द एंटायर टीम इन फ्रंट ऑफ देम. क्या वो इतना मैटर करता है? सो आई वॉज वेरी सरप्राइज टू सी दैट, और बिकॉज मैं भी उस फेज पे जा चुका था. If I'm coming late and if I'm giving my say 12 hours time to the organization, I'm going 10 o'clock in the night, sacrificing my professional life. लेकिन पंच इन का टाइम फिक्स्ड है ऑर्गेनाइजेशन में, पंच आउट का टाइम, वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, बहुत हार्ड है टू से दैट द पंच आउट इज नॉट फिक्स, क्योंकि बॉस आपका केबिन में अभी भी है, जब तक वो नहीं जाएंगे आपको नहीं जाना है, और बॉस से पहले आपको प्रेजेंट रहना है. सो स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है. तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जो कंटेंट राइटर है, ही इज एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड पर्सन. जो मेरे यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, उसने कुछ MBA किया था क्योंकि उसको मैनेजमेंट करना था, लेकिन कर कुछ और ही रहा है. सो इट्स ऑल मिसमैच. क्या उसको जो अच्छा करना था, मैं व्हेन आई हायर ए सेल्स गाय, आई ऑलवेज गिव कि यार यू आर कमिंग टू अ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन नाउ, सो डोंट फोकस ऑन योर सेल्स कैलिबर ओवर हियर. अगर मैं सेल्स के साथ में तुमको कंटेंट राइटिंग देता हूँ, तुमको डिजिटल मार्केटिंग देता हूँ, और तुमको वेंडर्स और होटल से कोऑर्डिनेशन का काम देता हूँ, तो तुमको कौन सा काम अच्छा लगेगा? बोले कि सर डू आई हैव अ चॉइस लाइक दिस? बोले यस यू हैव अ चॉइस इन दिस ऑर्गेनाइजेशन. सो सर मैं इवेंट मैनेजमेंट में वेंडर कोऑर्डिनेशन करूंगा, वो मेरा पैशन था, मैंने स्कूल में किया था, पापा के साथ में किया था, अभी बहन की शादी की है उसमें भी किया था, तो आई हैव ए नॉलेज एंड दे आर परफॉर्मिंग ब्रिलियंटली. टू सरप्राइज ऑल ऑफ यू, आई डोंट हैव ए फिजिकल ऑफिस इन इंडिया, माई ऑफिस इज इंडिया. मैं जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसी को भी हायर कर सकता हूँ. मेरे पास टैलेंट का कैसिटी और बाउंड्री नहीं है कि मेरी ऑफिस यहाँ पर है तो मुझे यहाँ के ही एम्प्लॉय लेना पड़ेगा. मैं गुवाहाटी से लेकर मैं गुजरात तक किसी को भी हायर कर सकता हूँ. आई हैव ए फाउंडेशन टीम ऑफ 15 मेंबर एंड 15 मेंबर आर रिप्रेजेंटिंग 15 स्टेट्स ऑफ इंडिया. इजंट इट अमेजिंग सर? अगर मैं ऑफिस खाली नोएडा में रखता तो मैं खाली नोएडा के लोगों को ही हायर कर रहा था. व्हाट अबाउट द टैलेंट्स इन द डिफरेंट सिटीज? एंड प्लस मेरे कंपनी में पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने का बहाना ही नहीं है. You cannot give this excuse कि I'm not able to balance my life. The only thing which you have to do, अपना टारगेट पूरा करो, अचीवमेंट करो, और इस तरह के इवेंट में जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, कन्याकुमारी कहीं पर भी घूमो, और हम लोग घूम रहे हैं, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं. So salute and hats off to all my backbone, my supporting staff, my sales team, my team at the console who are over the background. So thank you so much for making this possible. And don't we enjoy in the events like this? Isn't it amazing? मैं पंच इन पंच आउट नहीं रखने वाला हूँ. डोंट गेट अफ्रेड. हाँ, सो दिस इज हाउ वी स्टार्टेड दिस ऑर्गेनाइजेशन. आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड आई एम रियली ऑनर्ड कि हम MNC से सीख रहे हैं, सिलिकॉन सिटी से सीख रहे हैं. दे हैव द कल्चर ऑफ वर्किंग फ्रॉम होम नाउ. सो लेट अस विश दैट दिस समिट विल ओपन द गेटवे टुवर्ड्स द सस्टेनेबल एजुकेशन, अपॉर्चुनिटीज ऑफ कोलैबोरेशन एंड नेटवर्किंग, bringing hopes and positivity amongst the teachers, academicians, educators, and the entire education community. We have researched with lot of efforts and carefully chosen a very interesting and the relevant panel session topics of the day. Our special guest and chief guest and guest of honors are the stalwarts of education industry. We are shortly going to witness some of the finest and meaningful great deliberations, and I'm hopeful that we all will enjoy, learn, and enhance our knowledge from today's session. The session will be keep on posting the pictures in our social media platforms. So I request कि अगर हम स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं तो उसको यूटिलाइज भी करना सीखें. सभी स्पीकर्स, सभी डेलीगेट्स जो आज इस हॉल में हैं या जो आने वाले हैं, सबको हमारी टीम ने टैग किया है.
सोशल मीडिया में उनका क्रिएटिव बना के अप्रूवल करके डाला है, उस क्रिएटिव का आपने क्या किया? क्या आपके कलीग्स, क्या आपके बच्चे, क्या आपके सबऑर्डिनेट्स जानते हैं कि आप इस हॉल पे आज क्यों आए हैं? और अगर नहीं जानते हैं तो प्लीज रीशेयर करिए अपने सोशल मीडिया हैंडल से. लेट देम बी अवेयर कि व्हाई वी हैव टेकन लीव फ्रॉम आवर प्रीमाइसेस एंड व्हाई वी हैव गैदर्ड हियर. लेट द shout and voice should go outside this hall. Let the spread this knowledge and make our staff, our colleagues and our students aware why we are over here. On LinkedIn, Facebook, Twitter, you can see the social media का एक जो हमने एक stand ही लगाया है. And plus the team has also displayed, so you just have to scan this and it is even very easy to go to your search box, ARDORCOMM, Adarcom Media. अगर आपने ट्विटर में, फेसबुक में, लिंक्डइन पे टैग किया, आपको अपना पिक्चर और ये जो भी कुछ चल रहा है मेरी टीम वहां पर डाल रही है सेशन वाइज. सो प्लीज लाइक दैट एंड रीशेयर दैट. इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट to all of you. And plus, whenever you get time, lot of effort the edtech team has taken to display their products, services just outside this hall. So हमारे जितने भी partners हैं यहाँ पर, इन सभी लोगों ने अपना display लगाया है. They are helping us and they are making us understand कि what kind of technology and what kind of innovation is required in our institutions to make our campuses smart. So please spare at least your 5 minutes time to interact with each and everyone over here and see what is best for you they have to offer. And two important things. So this is the main hall where we have the conference throughout the day. People, those who have also invited as a speaker in the roundtable discussion, their roundtable hall is in the same building but on ground floor. That will start at 3:30. We'll announce that again at that time. So whosoever are the speakers in roundtable, please according to your time, shift yourself towards the second ground level hall. There the roundtable is happening. At 5 o'clock onwards, we'll be having our chief guest arriving at the venue. And after his speech, we'll be proceeding towards the felicitation ceremony and award ceremony. Every felicitation and award is going to happen on the stage. Individual picture and group pictures will be clicked. Avoid taking pictures until unless necessary from your mobile phone, because a better resolution pictures we are going to give you today evening before we end the event. In the same respective groups where we have joined you, you'll be getting a link with a better clarity than your smartphone's pictures you'll be getting. But it is for an immediate sharing you want to do that, you are free to do that. So these were a few hygienes I want to share that with you. So don't worry about pictures and videos. Allow us at a day's time and we'll be getting everything in place in the same respect. Thank you so much for being a patient listener and thank you so much for helping us co-create this wonderful event. Thank you so much. Thank you so much, sir. Your words were really kind and energetic. Now, ladies and gentlemen, next we invite a thought leader whose insights bridge the gap between academia and the digital future. A person who believes that skills are the new currency of 21st century. Please welcome Mr. Gagan Agarwal, Head Academic Partnerships, North and Central India, IBM Career Education. Can we have a big round of applause, please? Thank you so much for inviting me here. Honored organizers, sirs, dignitaries on the dais, dignitaries attending the session. It's a pleasure to talk to all of you today morning. I'll try to keep my session short and to the point. I belong to an organization called IBM. Most of you would be aware it's more than 110 years old company. And throughout its journey, IBM has continuously reinvented itself. We find a lot of synchronicity or synergy with the theme that we have today, where we are talking about this reinventing the skilling and learning paradigm for students. And this is what we have been doing in India. Incidentally, in case you are not aware, IBM was one of the first companies which started industry academia collaborations in India. And we started on this journey more than 15, 16 years back, when this was kind of unheard of in India. We started with undergraduate courses and postgraduate courses because we realized there is a fair bit of gap. And we have never looked back. Since then, we have been making giant strides in our endeavor. We have been working with private universities. Initially, of course, working with private universities is much easier because of various reasons. But we have been working with government, central government, we have been working with state governments, we have been working with government bodies, including NSDC and other government bodies, and towards this singular goal of skilling with the youth and making them employable. We have come up with new offerings in India
which are unparalleled, which are not offered anywhere else in world. We have had CM offices reaching out to us to work with them, with their states for skilling of students. We have taken up the mantle and we have worked with them with great success. We are also working with one of the universities where we are setting up pure AI-based campus, where students would be marked with their attendance based on facial recognition. They would be tracked in classroom on the kind of attention they are paying to Blackboard, the responsiveness of the student, and so on. It would be a pure AI-based campus. I cannot name the university right now, but we are in process of implementing it. We are working very closely with the university, and we hope to make it a huge success. The kind of vision we have for that campus is anywhere if the student is in class and they feel the need to check out a book from library, sitting in the class using an app on their mobile, they can just check out that book and a drone would deliver that book to them wherever they are sitting. Similarly, if they want to order a food, of course, classroom would not be allowed to order food, so it would have to be geo-fenced and geo-tagged. But the student outside the classroom in common area, if they want to order some snacks, drone would come and deliver it within the campus. These kind of facilities, these kind of futuristic campus we are trying to set up, and we have made very good progress in this respect. Our team worked with National Quantum Mission and AICTE, and we have set up the entire curriculum for the quantum computing in India. We are working very closely with AICTE and National Quantum Mission to set up more than 50 labs, which was last year. This year, we are looking at setting up more than 100 labs across India, and we have made huge success in this respect as well. Similarly, we have been working with Tamil Nadu government, where in one university alone, we are training more than 50,000 students, making them skilled and employable. And these are not just technical students. These include non-technical students, including students in humanities, commerce, MBA and BBA and other such streams. One concept that IBM brings with itself and which inculcates in all its employees, and we try to inculcate in the student, is adaptability. IBM, as its origin, started as a typewriter manufacturer. We moved on to manufacturing computers. We moved on to manufacturing supercomputers. We were biggest in computer hardwares. We were the biggest server producers in the world. And slowly and steadily, we hived off all of this, and we focus solely on technology. We have always prided ourselves on shaping the future instead of being part of the future. This is where our strength comes from. We take a lot of pride in being adaptable. And that is one skill that we want to impart all our students, all our partners, all our associations, that you need to continuously be adaptable. You need to be able to continuously reinvent yourself. And I think this goes very well with the theme that we have today. And we look forward to doing great things in Jammu with help of Sir here and the other dignitaries present here. We hope to collaborate and work for betterment and skilling of students, launching new programs and offerings where students and the academia can benefit in general. Thank you. Thank you so much, sir. Next, we have our next keynote address comes for a leader whose name is synonymous with innovation in early childhood education, a visionary who transformed the landscape of preschool education across India, a pioneer who believes that learning should be taught, should not be taught, it should be experienced. Please welcome Dr. S.K. Rathod, founder, chairman, and MD, Senfort Group of Schools. Thank you so much. So first of all, I would like to congratulate Chandan and Ashish for making this startup so big. I am seeing you people doing events every month in small cities. तो सबसे पहले तो इन लोगों के लिए तालियां इसलिए होनी चाहिए कि छोटे शहरों पे जहाँ बड़े मीडिया हाउसेस जाके कोई इवेंट नहीं करते थे, the small cities were ignored and these kind of events were not happening, and knowledge sharing what we always have in these kind of events were not happening in small cities. These people have taken that initiative and they are doing fantastic job. And I know Chandan and Ashish for more than last 10 years before they started this venture. I have very soft corner for these people. They are just like my younger brothers. So whenever they call me कि सर यहाँ आना है तो मैं कभी मना नहीं कर पाता हूँ. तो अभी because we are talking about the education, and in the last panel I was listening very carefully. Everybody was talking about Jain ji
and technology, digital education, and problems in the hilly areas. So there are many challenges and many opportunities as well. Because I started my educational journey from the early childhood education 25 years back. We started our first preschool 25 years back when there was no such concept of preschool was there in the country. 25 साल पहले जब पहला प्ले स्कूल शुरू किया तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस द पेरेंट्स टू सेंड देयर चिल्ड्रन ऑफ 3 इयर्स एज. अभी तो 2 साल से भी छोटे बच्चे आते हैं प्री स्कूल्स में. 3 साल के बच्चे को स्कूल में क्यों भेजें ये कन्विंस करना वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट. एंड फर्स्ट ईयर वी फेस वेरी वेरी टफ टाइम. वी हैड ओनली 18 स्टूडेंट in the first year. So that is the journey we started 25 years back, and today we have nearly 300 preschools across the country and many primary schools and 10+2 schools in Noida. So this is our small journey. So what I have I have seen the change or experienced the change in the parental mindset and the education system what we are having today. So if we talk about the early learning, प्ले स्कूल्स का काम पढ़ाना नहीं होता है, प्ले स्कूल का काम सिखाना होता है. कोई भी प्ले स्कूल अगर ये कहता है कि हम ये पढ़ाते हैं तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को उस स्कूल में अपने बच्चे को नहीं भेजना चाहिए. सो व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम शुड बी देयर एट द चाइल्डहुड पीरियड. जो शुरू के 5 साल हैं बच्चे के, उन 5 सालों में पेरेंट्स को और एजुकेटर्स को बच्चों के साथ क्या करना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड एजुकेशन इज नेवर बीन द स्कूल्स रेस्पॉन्सिबिलिटी ओनली. दिस इज अ जॉइंट एफर्ट, और आई कैन से दिस इज जॉइंट वेंचर ऑफ द पेरेंट्स एंड द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. बट अनफॉर्चुनेटली टुडे पेरेंट्स आर आउटसोर्सिंग देयर पेरेंटिंग. पेरेंट्स जो है पेरेंटिंग को आउटसोर्स कर रहे हैं. वंस दे एडमिट देयर चाइल्ड, whether it is a preschool or 10+2 school or university or anywhere, they thought कि हमने पैसा जमा कर दिया ना तो now this is your responsibility. It will not happen. तो अभी जो प्रॉब्लम आ रही है, जैन जी की बात कर रहे थे. जैन जी, व्हाट इज जैन जी? अभी क्योंकि टेक्नोलॉजी है, गूगल है, इंटरनेट है, इसलिए हमें जनरेशन पता लग रही है. कब कौन सी जनरेशन, मुझे नहीं पता मैं किस जनरेशन को बिलोंग करता हूँ. हमारे टाइम में बस ये होता था कि जनरेशन गैप इज देयर. आई एम नॉट सो ओल्ड, बट हमारे टाइम इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी टेक्नोलॉजी ने ये बता दिया कि ये बूमर्स हैं, ये मिलेनियल्स हैं, ये जैन जी है. इस ईयर से इस ईयर तक बॉर्न हुए हैं तो ये जैन जी होंगे. बट व्हाट आई बिलीव, ए चाइल्ड इज ऑलवेज चाइल्ड. वो किसी भी जनरेशन का बच्चा है तो वो बच्चा है, उसको हमें बच्चे की तरह ट्रीट करना चाहिए. हमें ये भूल जाना चाहिए कि हमें इंटरनेट ने क्या बताया कौन सी जनरेशन है. दैट इज आवर चाइल्ड. वी नीड टू ट्रीट दैट चाइल्ड द वे आवर पेरेंट ट्रीटेड अस. उनको क्या ट्रीटमेंट मिलना चाहिए जिससे कि उनकी वैल्यू सिस्टम डेवलप हो सके. तो अभी जो टेक्नोलॉजी की डिसएडवांटेज और एडवांटेज पे भी बात सुन रहा था मैं. ए बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी इज इन द अर्ली ईयर्स. जो छोटे बच्चे के साथ में हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, दैट इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ द टेक्नोलॉजी. सम टाइम बैक आई वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम लखनऊ टू दिल्ली एंड आई वाज वेटिंग इन द लाउंज for my flight. So I come across with young couple. They are having a child of hardly 1 year. And the mother was bottle feeding that child and the father was holding a mobile phone and showing the cartoon to the child so that the child can have the milk. And the moment the video stopped, the child started crying. And the same moment, mother started shouting on the husband, कि यार आप क्या एक मोबाइल भी नहीं पकड़ के रख सकते हो, बच्चे ने दूध छोड़ दिया. What kind of parenting we are doing? हम 1 साल के बच्चे को अगर टेक्नोलॉजी को एक्सपोज कर रहे हैं और हम बच्चे को नहीं पता वो क्या पी रहा है, उसको टेस्ट का नहीं समझ आएगा. अभी कुछ दिन पहले आई वॉज सिटिंग इन वन ऑफ माई ब्रांच एंड वन पेरेंट केम फॉर द एडमिशन. फॉर्चुनेटली आई वॉज देयर इन द ऑफिस. सो वन पेरेंट केम फॉर द एडमिशन विद रफली 2 year old चाइल्ड. एंड द मोमेंट हमारे यहाँ सिस्टम ये है कि हम जब भी कोई पेरेंट एडमिशन के लिए आता है, हम बच्चे को टीचर को बोलते हैं आप इसको बच्चों के साथ ले जाओ खिलाने के लिए, अंदर ले जाओ, बच्चे के साथ खेलेगा बच्चा. सो दैट जब तक बच्चा वहाँ खेलेगा तब तक पेरेंट्स के साथ काउंसलिंग हो जाएगी और बच्चा भी वहाँ पर उसको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है पेरेंट को समझ आ जाएगा. द मोमेंट चाइल्ड एंटर इनटू द एक्टिविटी एरिया, seeing the number of children there, he started crying because he was never exposed to the crowd.
He was never exposed to the crowd. When I asked the parent why the child is crying, seeing the children, तो उन्होंने कहा कि सर हमारे पास टाइम नहीं होता है, तो हम सोसाइटी में रहते हैं, पर हम लेट आते हैं, नैनी के साथ बच्चा पूरा दिन रहता है, हम लोग कभी नीचे इसको सोशलाइजेशन के लिए ले नहीं जा पाते हैं, तो दैट इज द प्रॉब्लम. तो चाइल्ड वाज लिविंग विद द स्क्रीन एंड द नैनी. अगेन द प्रॉब्लम विद द टेक्नोलॉजी. बच्चे ने केवल वो टीवी पे या मोबाइल पे जो कुछ देखा है वही देखा है, उसने नहीं देखा कि बच्चों के साथ भी खेलना होता है. Another case in another branch, these are all real life experience what I have come across. Another case in one of my school, a couple came with 2.5 year of daughter for the admission. Girl was very sharp, very sharp, but failed to make the simple sentences. तो हमने पूछा बेटा आपको क्या अच्छा लगता है? What you like? She likes the cartoon movies and all the things. She named every cartoon character, but she failed to name the 2 friends she had because she didn't have any friend. So Gen Z or whatever generation today we are having, we need to give them time. We give to them the exposure. We need to take away them from the screen. So technology should be exposed maybe in the later classes of the primary education, maybe 3rd, 4th classes, not before that. तो ये बहुत important है. अभी हम वैल्यू सिस्टम डाउनलोड नहीं कर रहे हैं अपने बच्चों को. हम उनको टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, हम उनको फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाके खाना खिला रहे हैं, हम उनको अच्छी जगह घुमाने ले जा रहे हैं, बट हम उनको नहीं बता रहे हैं हाउ द सोसाइटी वर्क्स, हाउ द एजुकेशन हैपन, हाउ द लर्निंग विल हैपन. So I believe this is the responsibility of, because the parenting is outsourced, so this is the major responsibility of educators to bring that kind of education to in front of the child. तो और साथ में हमें पेरेंट्स को भी काउंसिल करना पड़ेगा और पेरेंट्स को भी ये ज्ञान देना पड़ेगा कि आप फीस देके या बच्चे को सुविधाएं देकर अपनी पेरेंटिंग ठीक से कर रहे हो, ऐसा नहीं है. So whenever the technology comes in the senior classes, this is a beautiful concept. We cannot separate education with the technology. Technology आने के बाद से education अच्छी हुई है, strong हुई है. In the remotest of the remotest area where we don't have good teachers, the technology helps to bring the good education there. So I believe technology will stay there. Technology should be there, but it should not be in the early childhood era. Thank you so much. थैंक यू सो मच सर. क्योंकि मैं भी एक जेनजी हूँ, इसलिए एक जेनजी की तरफ से आप सभी को बहुत सारा धन्यवाद. क्योंकि भले ही जेनजी इमारत की वो ऊंची मंजिल है, लेकिन वो ऊंची मंजिल तब तक कामयाब नहीं होती जब तक उसकी बुनियाद मजबूत ना हो. और आप सब मिलके वो बुनियाद, वो प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करते हैं. थैंक यू सो मच सर. नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, it is time to invite distinguished leader whose vision has shaped the skilling and employment landscape of Jammu and Kashmir. A dynamic IAS officer, a policy maker with purpose, और एक ऐसा नेतृत्व जिनके पहल से युवाओं को नए अवसर, नई दिशा और नई पहचान मिली है. Before I invite sir on the stage to address, we have a small video clip of sir. So can we have a big round of applause before we play it? Thank you so much. Can we have the videograph, please? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सपना आत्मनिर्भर भारत अब जम्मू और कश्मीर में युवा उद्यमी विकास अभियान मिशन युवा के माध्यम से साकार हो रहा है. यह मिशन न केवल व्यवसाय बनाने का अवसर दे रहा है, बल्कि युवाओं के विचारों को हकीकत में बदलने और उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाने में भी मदद कर रहा है. मिशन युवा को मजबूत आधार देने के लिए जनवरी के महीने में पूरे यूटी में एक व्यापक बेसलाइन सर्वे कराया गया. इस सर्वे में 18,000 इन्वेस्टिगेटर्स ने 1 करोड़ से अधिक लोगों और 23 लाख से अधिक हाउस होल्ड्स का सर्वे एक मोबाइल ऐप के जरिए किया. इसका उद्देश्य यह जानना था कि कितने लोग उद्यमिता को अपनाने में इच्छुक हैं और उनकी पृष्ठभूमि क्या है. इसके माध्यम से 4,291 पंचायत और 1,124 वार्ड में 5 लाख से अधिक पोटेंशियल. इस सर्वे से प्राप्त जानकारी के आधार पर मिशन युवा का 5 साल का रोड मैप तैयार किया गया, जिसे युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं के साथ जोड़ा गया. मिशन युवा को 4 प्रमुख स्तंभ कल्चर, क्रेडिट, कैपेसिटी और कनेक्टिविटी पर खड़ा किया गया है.
इस रणनीति के तहत विभिन्न विशेषज्ञों और सरकार के साथ विचार विमर्श के बाद माननीय मुख्यमंत्री जनाब ओमार अब्दुल्ला ने मिशन युवा को लॉन्च किया। लॉन्च के दौरान डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स और एंटरप्रेन्योर्स ने अपने विचार और व्यवसायों को शोकेश किया। यह लॉन्च जम्मू और कश्मीर के युवाओं के लिए प्रेरणा और उम्मीद का प्रतीक बन गया, जहां उन्हें अपनी मंजिल की दिशा में पहला कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। मिशन युवा की योजना को व्यापक रूप से लोगों तक पहुंचाने के लिए हमने एक ऐप विकसित किया, जिसका लाभ अब तक 1 लाख से अधिक लोगों को मिल चुका है। यह ऐप बेनिफिशियरीज को स्कीम में आवेदन करने, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाने और सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने की सुविधा देता है। इसके अलावा यह रोजगार और करियर काउंसलिंग का भी अहम स्रोत है। हमने मिशन युवा का डैशबोर्ड भी तैयार किया, जो पूरी योजना की निरंतर निगरानी करता है और हर स्तर पर कार्यों की ट्रैकिंग को सुनिश्चित करता है। यह डैशबोर्ड पूरी प्रक्रिया को सही दिशा में और सही समय पर पूरा करने की गारंटी देता है। हर बड़े कदम की नींव जागरूकता और समर्थन होती है। हमारा मकसद सिर्फ लोगों को स्कीम के बारे में बताना नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि यह बदलाव सीधे लाभार्थियों तक पहुंचे। 20 स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट्स और 80 बिजनेस हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है और 1000 से अधिक मोटिवेटर्स एंटरप्रेन्योर्स को गाइडेंस भी दे रहे हैं। अब तक 30,000 से अधिक DPRs तैयार किए गए हैं और पंचायत स्तर पर उद्यम जागृति अभियान भी चलाया जा रहा है, जिससे सभी पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स तक जागरूकता पहुंचाई जा रही है। मिशन युवा का क्रेडिट पिलर नैनो एंटरप्राइजेस को 10 लाख तक की प्रोजेक्ट कॉस्ट पर 25% सब्सिडी और 5% इंटरेस्ट सबवेंशन दे रहा है और महिलाओं तथा दिव्यांगजनों के लिए 30% तक की विशेष सब्सिडी भी उपलब्ध है। इसके अलावा 7,500 MSMEs को 10 लाख से 2 करोड़ तक का बजट और 6% इंटरेस्ट सबवेंशन मिल रहा है। जम्मू और कश्मीर में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए 2 इनोवेशन हब्स और 14 इंक्यूबेशन सेंटर्स स्थापित किए गए हैं। इसके तहत नियो इनोवेटिव स्टार्टअप्स को जम्मू और कश्मीर गवर्नमेंट द्वारा 20 लाख तक की फंडिंग प्रदान की जा रही है। अब तक 55,000 से अधिक लोगों ने अपने सपनों के साथ आवेदन किया है और उनमें से 6,500 उद्यमियों को लोन के जरिए अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने का अवसर मिल चुका है। सरकार की ओर से 200 करोड़ से अधिक की राशि बिजनेस यूनिट्स को स्थापित करने के लिए डिस्बर्स हो चुकी है। मिशन युवा का कैपेसिटी पिलर युवाओं को सेक्टर स्पेसिफिक स्किल्स और एंटरप्रेन्योरशिप में व्यावसायिक प्रशिक्षण दे रहा है। 60 से अधिक ट्रेनिंग सेंटर्स में 78 प्रशिक्षकों ने 2000 से ज्यादा बेनिफिशियरीज को मेंटोरशिप दी है। साथ ही सेक्टर स्पेसिफिक प्रोग्राम्स और इनोवेशन एंड डिजाइन थिंकिंग वर्कशॉप से युवाओं को नए अवसर मिल रहे हैं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों से हर एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर को अपनी सोच का नया आयाम देने और व्यावसायिक कौशल में सुधार करने का अवसर भी मिल रहा है। ONDC के साथ मिलकर ई-कॉमर्स सेलर ऐप विकसित किया गया है, जो स्थानीय दुकानदारों को 0 कमीशन पर अपने उत्पाद ऑनलाइन बेचने का अवसर देता है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ हो रहा है। मिशन युवा अपने 4 स्तंभ कल्चर, क्रेडिट, कैपेसिटी और कनेक्टिविटी के माध्यम से जम्मू और कश्मीर को आत्मनिर्भर और समृद्ध बना रहा है। यह मिशन न केवल व्यवसायों की नींव रख रहा है, बल्कि हर युवा के सपनों को हकीकत बना रहा है। और यह वही बदलाव है जो जम्मू और कश्मीर का भविष्य संवारने जा रहा है। That was a wonderful video. Now I request Sir Shehzad Alam IAS, Director, Employment and Skill Development, MD Mission Yuva, Government Jammu and Kashmir, to kindly come on the stage and address the audience with your kind words. So, good morning everyone. So, when we are talking of skilling, so it is very important that where it is culminating. And till now, whenever we think of skilling and when we discuss about skilling, एक जो दिमाग में जो बातें रहती हैं वो होती है वेज एम्प्लॉयमेंट,
कि कहीं उसको नौकरी लग जाए, कहीं उसको जॉब लग जाए, कहीं वो प्लेसमेंट हो जाए। हमारी कोशिश जो है पूरी तरीके से ये है कि अगर किसी को स्किलिंग है भी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इंटरप्रेन्योरशिप में जाए। उस एंड जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि स्पेशली अगर आप यहाँ थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ के जो यूथ हैं जनरली यहीं पे अपना कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने फैमिलीज के साथ रहना चाहते हैं, एंड एक जो मतलब जम्मू एंड कश्मीर से जो बाहर जाने का जो एक मीन्स कल्चर है वो नहीं है। इसी वजह से हमें जम्मू एंड कश्मीर में एक इंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर क्रिएट करने की ज़रूरत है। सो इस वजह से मिशन युवा को कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया, जिसमें हमने, आपने जैसे वीडियोस में देखा, हमने जनवरी के महीने में एक पूरे यूटी में एक बेसलाइन सर्वे किया। बेसलाइन सर्वे में हम डोर टू डोर गए। हमने एक पहले एक मोबाइल ऐप बनाया जिसमें क्वेश्चनियर्स थे, और हमने 18,000 इन्वेस्टिगेटर्स के थ्रू वो डोर टू डोर गए। उन्होंने सभी के डेटा कैप्चर किए, एंड बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन दे हैव कैप्चर्ड, हमने 1.1 करोड़ लोगों के जो डेटा कैप्चर किए, उससे हमने जो है 5.5 लाख पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर को आइडेंटिफाई किया। अब इन 5.5 लाख पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर को मोबिलाइज करके हमारा टारगेट है कि नेक्स्ट 5 ईयर में 1.37 लाख इंटरप्राइजेस क्रिएट करें, जिसमें 4.25 लाख को जॉब को क्रिएट करना है। सो ये एक मिशन युवा का मैंडेट है। सो अगर जैसे आप देखेंगे मिशन युवा का जनवरी के महीने में हमने बेसलाइन सर्वे किया, फिर ऐप डेवलप्ड किया। आप प्ले स्टोर पे जाके मिशन युवा JNK टाइप करेंगे तो आपको सीधा मिशन युवा ऐप नजर आ जाएगा। ताकि कई दफा क्या होता है कि एक स्कीम तो लॉन्च हो जाता है, बट वो लोगों को पता नहीं होता है, लोगों को ये नहीं पता होता है कि उसके लिए हम कहाँ जाएं, क्या जाएं। तो हमने ये कोशिश करी है कि सारी इंफॉर्मेशन मिशन युवा ऐप पे होना चाहिए, और साथ ही साथ एक मिशन युवा का पोर्टल भी है, missionYuva.jk.gov.in, ताकि अगर कोई वो पोर्टल या ऐप पे जाता है तो उसको इस स्कीम या जो भी इसमें एक इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं उसके बारे में उनको पूरा पता हो। देन उसके बाद मई के महीने में हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने इसको जो है लॉन्च किया, एंड उसके बाद से हमने जो है एप्लीकेशंस लेने शुरू किए। अभी तक 60,000 एप्लीकेशंस रिसीव कर चुके हैं, एंड 5 अभी जो वीडियोस में 200 करोड़ था, नाउ इट हैज रीच्ड टू 500 करोड़। तो अभी तक हमने 500 करोड़ जो है इसमें लोगों को डिसबर्स भी किया है। तो एक जो ये प्रोग्रेस से जो एक मिशन चल रहा है, उसके बाद हाँ, इस मिशन को थोड़ा सा अगर मैं जब एक्सप्लेन करूं तो ये मिशन जो है 4 C's पे बेस्ड है। 4C ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक जितने भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स थे या गवर्नमेंट इस तरह के स्कीम्स देते थे, उसमें मोस्टली एक फोकस ये होता था कि आप उनको सब्सिडी दे दो, आप उनको इंटरेस्ट सबवेंशन दे दो। तो द ओनली फोकस वाज ऑन कैपिटल, बट प्रोवाइडिंग मनी टू ए एंटरप्रेन्योर और टू मतलब अगर कोई मतलब रूरल एरियाज में कोई यूथ है तो प्रोवाइडिंग मनी इज नॉट इनफ। सबसे पहले उनको पता ही नहीं होता है कि व्हाट एक्टिविटीज दे वांट टू डू, व्हाट इंटरप्राइजेस दे वांट टू स्टार्ट, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है जिसमें वो स्टार्ट कर सकते हैं। इसी वजह से मिशन युवा का जो सबसे पहला पिलर है वो है कल्चर। एक हमें एंटरप्रेन्योरशिप का एक कल्चर क्रिएट करना है। बट व्हेन आई से एक कल्चर क्रिएट करना है, ये काफी एक वेग टर्म है, लाइक इट विल नॉट गिव ए क्लैरिटी कि क्या कल्चर क्रिएट करके क्या मतलब करना क्या चाहते हैं। कल्चर क्रिएट करने में 2 चीजें हैं। वन इसकी, अगर आपके जो भी मिशन के इनिशिएटिव्स हैं उसको थ्रू टीवी, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू न्यूज़पेपर, थ्रू billboards, through different platform, you need to propagate it to the people. The second, but this is not also enough. कई सारे गांव के लोग हैं, कोई थोड़ी न्यूज़पेपर पढ़ता है, टीवी भी बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, सोशल मीडिया भी कुछ लोग देखते हैं। द सेकेंड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज द इंस्टीट्यूशनल बिजनेस सपोर्ट मैकेनिज्म, कि आप जैसे कि अगर एक बिजनेस सपोर्ट मैकेनिज्म का एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट हो, उसके लिए जो मिशन युवा में क्या है कि आपको ग्राउंड लेवल पे युवा दूत है, हर 3 to 4 पंचायत पे युवा दूत है, और उस युवा दूत के पास ये जो पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर बेसलाइन सर्वे में जो आइडेंटिफाई हुए थे उसके लिस्ट है, along with their contact number, along with their address, along with their house. They will go, वो हर हाउस टू हाउस जाते हैं, उससे जो है उसको थोड़ा मोटिवेट करते हैं, उसको मिशन युवा का एप्लीकेशन फिल करने में हेल्प करते हैं, और उसको जो है गाइड करते हैं। तो एक तो ग्राउंड लेवल पे युवा दूत हो गया, बट युवा दूत का भी जो है वो क्वालिटी नहीं होगा, वो एक ग्रास रूट लेवल वर्कर है, आप उससे बहुत ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। देन आपका सब डिवीजन लेवल पे एक बिजनेस हेल्प डेस्क है,
जिसमें आपको एक बिजनेस हेल्प डेस्क लीड है, बिजनेस हेल्प डेस्क कोऑर्डिनेटर है, जो लोगों को फर्दर थोड़ा सा उनके आइडियाज को रिफाइन करने में, उनके एप्लीकेशंस को बेटर करने में वो सपोर्ट करेगा. एंड देन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल देयर इज ए स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट. स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट का काम क्या है कि वो उनके डीपीआर को कंप्लीटली बनाएगा, वो उनके परफॉर्मा इनवॉइस को बनाएगा, वो उनके जो रेंट एग्रीमेंट बनाना है उनको बनाएगा और उनके एप्लीकेशंस को पूरी तरीके से तैयार करेगा. अभी तक आप कोई भी गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करें, जनरली ये होता है कि एक एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन भरा, गवर्नमेंट के जो ऑफिसर हैं उस एप्लीकेशन को स्क्रूटिनाइज करते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं क्या ठीक भरा है या नहीं, उसमें कुछ कमी है तो सीधा वापस. यही होता है गवर्नमेंट स्कीम्स में. बट मिशन युवा में जब एप्लीकेंट एक एप्लीकेशन भरता है तो उसको सिर्फ अपना बेसिक डिटेल देना होता है जो उसको पता है, और बिजनेस का सिर्फ वेग आइडिया देने होते हैं. बट जब वो एप्लीकेशन स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट के पास आती है तो स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट को पूरा का पूरा एप्लीकेशन एडिट करने का ऑप्शन है. स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट में जो एक्सपर्ट या जो बंदा बैठा है वो ये नहीं बोल सकता है कि ये एप्लीकेंट ने तो ये गलत भर दिया था, इसने सही नहीं भरा, इसने ये चीज ठीक नहीं भरा, इस वजह से हमने इसके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिए. तो ये रिजेक्शन का तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है. रिजेक्शन एप्लीकेशन एप्लीकेंट को तभी वापस जाएगा जब एप्लीकेंट ही खुद बोल दे या उसका मन बदल जाए या उसको नहीं है कि हमको चलो मैं कुछ और करूंगा या 6 महीने बाद देखूंगा. एप्लीकेंट जब तक खुद, आप ये बोल के वापस नहीं कर सकते कि आपने एड्रेस में यहां कॉमा छोड़ दिया या यहां डीपीआर में ये कमी है. ये सारी की सारी जिम्मेवारी राइट फ्रॉम द डे वन वी हैव फिक्स्ड इट टू द स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट, बिकॉज दिस इज द चेंज. देयर इज a need of change of attitude within the working of the government. इससे पहले मैं ट्रांसपोर्ट में था दिल्ली में, वहां पे आपको कोई ड्राइविंग लाइसेंस है तो वहां तो सिंपल सा होता है कि या कोई गाड़ी का रजिस्ट्रेशन है, उसमें तो सिर्फ वो जो बाबू है वो बैठा हुआ वो चेक करेगा कि ये ठीक भरा है, नहीं भरा है तो बस सीधा वापस, सीधा रिजेक्ट. तो वो कल्चर जो है उससे आप लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप में वो नहीं कर सकते. लोग तो छोड़ देंगे, लोगों को क्या है, लोग तो ऐसे भी अपना जो है वो उनको लग जाएगा कि यहां तो मेरा समय ही सिर्फ खराब हो रहा है. तो ये जो एक इंस्टीट्यूशनल बिजनेस सपोर्ट मैकेनिज्म बनाना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट में जो डिप्टी कमिश्नर है, दे आर पर्सनली मॉनिटरिंग द स्कीम, दे आर पर्सनली गवर्निंग द स्कीम. तो इस वजह से ये नहीं कि जो है आप डिस्ट्रिक्ट में ही किसी मतलब नीचे के मुलाजिम पे आपने छोड़ दिया कि वो अपना स्कीम को अपने हिसाब से देख रहा नहीं. दिस स्कीम इज कॉन्स्टेंटली बीइंग मॉनिटर्ड बाय द डिप्टी कमिश्नर. उनके अंतर्गत एक डिस्ट्रिक्ट लेवल इंप्लीमेंटेशन कमेटी है जो उसको पूरी तरीके से देखते हैं. बट उनका मोर ऑफ रोल है मॉनिटरिंग, एक नजर रखना. बट क्रिटिकल रोल किसका है? एसबीडीयू का. तो एसबीडीयू, बीएचडी, ग्राउंड पे युवा दूत, ये एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जो है क्रिएट करना, ताकि अगर एंटरप्राइज का किसी को कोई थोड़ा सा आइडिया भी हो तो जो है वो उसको पता है कि मुझे यहां जाना है और ये लोग मुझे इस तरीके से हेल्प करेंगे. उसको नहीं भी जाना है तो कम से कम वो मिशन युवा के एप्लीकेशन भर देगा, तो फिर उसको जो एसबीडीयू जो है फॉलो अप करके उसके एप्लीकेशन को कंप्लीट करेंगे. द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज द कैपिटल. कैपिटल में दिस इज वेरी जनरल, मतलब बहुत सारी स्कीम्स में होता है कि आपने इंटरेस्ट सबवेंशन देना है, आपने सब्सिडी देना है, आपने फंडिंग देना है. इसमें ऐसा कोई इनोवेशन जैसा बात नहीं, लेकिन इसमें एक चीज बहुत क्रिटिकल है, वो है कोलैटरल. अभी क्या होता है कि जो एमएसएमईज के जो लोन होते हैं वो मतलब लाइक मोस्टली कोलैटरल फ्री होते हैं. बट एक एग्री एलाइड ऐसा सेक्टर है जहां पे कोलैटरल का जो है स्कोप अभी भी जो है बैंक करता है. तो इस मिशन युवा में वी आर वर्किंग की जो एग्री एलाइड एक्टिविटीज है, जैसे डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, इन सब मतलब कोई भी ऐसा एक्टिविटी ना छूटने पाए जहां पे कोलैटरल का जरूरत हो. एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट पिलर इज द कैपेसिटी बिल्डिंग. कैपेसिटी बिल्डिंग में भी काफी ज्यादा जो है इनोवेशन की जरूरत है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर इतना बड़ा स्टेट है, दूर दराज के रिमोट इलाका है. जैसे बता रहे थे कि टेक्नोलॉजी से जो है रिमोट एरिया में जो है इंप्रूवमेंट हुआ है इन द डिलीवरी, एंड डेफिनेटली हुआ है. What we have done in the capacity building in this mission UI is that कि हमारे पास जो इंस्ट्रक्टर है वो तो वहीं का होगा जो whatever the label we have got, we are satisfied with it, but we are not relying 100% on that person. वो जो पढ़ा रहा है वो अच्छी बात. हमने स्किल इंडिया डिजिटल हब से, या जैसे कि IBM है, इंटेल है, जो डिफरेंट इस तरह के जो कंपनीज है वो भी कई सारे कोर्सेज जो है वो बनाते हैं, उसको आइडेंटिफाई किया है टॉप 10 बेस्ट कोर्सेज टू वॉट एवर आवर अंडरस्टैंडिंग वी हैव आइडेंटिफाइड, and we are delivering that courses through digital mode. वहां पे इंस्ट्रक्टर खड़ा रहता है, डिजिटल मोड में वो चलता है.
जहां पे लोगों को कोई डाउट है, जहां पे कंफ्यूजन है, वो उसको थोड़ा सा आसान भाषा में एक्सप्लेन करता है, लोकल लैंग्वेजेस में एक्सप्लेन करता है, ताकि जो है लोगों को समझ आ जाए। क्योंकि ऑनलाइन का भी लिमिटेशन है। हमने मिशन युवा पे कम से कम जो है 24,000 वीडियोस डाले हैं, और जो है कम से कम 700 कोर्सेज जो है मिशन युवा ऐप पे अगर आप देखेंगे स्किल लर्निंग हब में जाके, बट उसको जो है आजकल लोग यूज करते हैं, बट अगर आप स्टूडेंट को छोड़ दोगे कि ठीक है ऑनलाइन कोर्सेज देखो, कोई नहीं देखता है। या इवन मुझे ही कोई बोल दे कि 4 कोर्सेज तुम देखना, अगर मेरे ऊपर मैंडेट नहीं करे तो मैं भी कौन उसको टाइम निकाल के देखना। इसी वजह से ऑनलाइन तो रखना है, बट इट हैज टू बी हाइब्रिड, कि you teach the online quality course in the classroom. This is what we thought ki will be the best model in order to ensure the quality, कि हर जगह सेम क्वालिटी हो, हर जगह सेम कंटेंट डिलीवरी हो, और लोगों को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग। एंड द लास्ट इज द कनेक्टिविटी। तो लोगों को इंटरप्राइज एस्टैब्लिश हो गया, उनको एक कैपेसिटी बिल्डिंग आ गया, नाउ दे शुड हैव ए अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट टू द मार्केट। उसके लिए देर इज अ प्रोविजन फॉर रीजनल ट्रेड फेयर, देर इज अ प्रोविजन फॉर ई कॉमर्स, ONDC बेस्ड ई कॉमर्स सेलर ऐप, जहां पे लोग अपना प्रोडक्ट डाले। जैसे क्योंकि ये जो दूसरे जो एप्स हैं वो बहुत ज्यादा कमीशन चार्ज करते हैं, तो इसमें हमारा अभी जो लास्ट वाला पिलर है उसमें थोड़ा अटेम्प्ट अभी स्टार्ट हुआ है, उस पर अभी हमें थोड़ा और ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो ये जो आप देखेंगे कल्चर पिलर के अंतर्गत जो है अभी तक हमने हाउस होल्ड सर्वे कराया, अवेयरनेस कैंपेन एंड इवेंट्स। हर पंचायत में जो है ये युवा दूत, SBDUs, इन लोगों ने जाके अवेयरनेस किया, जो आप वीडियोस में भी देख रहे थे। और अवेयरनेस इवेंट का ये मतलब नहीं होता है कि आप बड़े बड़े इवेंट कर रहे हैं, आप डिग्निटरीज को बुला रहे हैं। अवेयरनेस इवेंट का मैं जो लोगों को बताता हूं कि 20 लोगों को लेके बैठ जाओ, पंचायत भवन में बैठो, जमीन पे बैठो, जहां बैठना है बैठो, उसको समझाओ कि ये है क्या, करना क्या है। उसको इवेंट के चक्कर में पड़े तो फिर हो गया। उसको जो है गांव में जाओ, बैठो, उसको समझाओ। आप देख रहे थे कैसे 10-10, 15-15 लोग जो है वीडियोस में 20-20 लोग बैठ के, और इस तरीके से जो है हमने लगभग हर पंचायत को जो है टच करने की कोशिश की। उसके बाद कॉलेज स्टूडेंट जो कॉलेज में पढ़ते हैं वो लोग बिल्कुल एकदम से एंटरप्रेन्योरशिप में नहीं आ जाएंगे, उनको थोड़ा सा धीरे धीरे छोटा छोटा कैप्सूल देना पड़ेगा टू एक माइंड सेट करने के लिए। तो उनको हम उस तरीके से बताते हैं कि आप पहले कम से कम देखो, समझो इसमें क्या है, किस तरीके से है। और उसमें भी हमने लगभग 30 से 40 हजार कॉलेज के स्टूडेंट्स को कवर किया है। उसके बाद जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं होती हैं, वो लोग ऑलरेडी एक एंटरप्रेन्योरशिप के कल्चर में है, उन लोगों को ऑलरेडी कई सारी चीजें जो है वो पता है, उनको कवर किया। इस तरीके से अभी तक लगभग 2 लाख ओवरऑल पार्टिसिपेशन। हमारा जो पोर्टल है उस पर ही 4 लाख का जो है विजिट हो गया, ऐप का डाउनलोड 1.5 लाख है। तो एक काइंड ऑफ एक अवेयरनेस कैंपेन और इवेंट कराने की जरूरत है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, वो है 20 स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट और 180 बिजनेस हेल्प डेस्क हर सब डिवीजन में, और ऑन ग्राउंड मोटिवेटर। ये इंस्टीट्यूशन जो है वो क्लैरिटी होना चाहिए लोगों को कि हु आर द पीपल हु इज गोइंग टू हेल्प मी। कौन है जो मेरा DPR बनाएगा, कौन है जो मेरा अगर कोई डॉक्यूमेंट इशू हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगा तो मेरा वो रिजॉल्व करेगा, कौन है जो मेरे लिए बैंक से जाके बात करेगा। बैंक को समझाना भी तो एक अपने एक बहुत बड़ा काम है। उसको कम से कम जाके कोई समझाए कि देखो बताओ भाई इसमें क्या दिक्कत है। उसके बाद 1 स्टॉप पोर्टल, एक स्टॉप पोर्टल होना चाहिए जहां पे जो है लोगों को सारी चीजें पता हो। एंड लास्ट है इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी चैलेंज, वो है न्यू इनोवेटिव एंटरप्राइज के लिए। नैनो MSME और जो रूटीन के लोग एक स्टार्ट कर रहे हैं वो तो उनको तो डायरेक्ट फंडिंग है, देयर इज नो फिल्टरिंग देयर। बट जो इनोवेटिव स्टार्टअप जिसमें डायरेक्ट फंडिंग है, वहां पे एक यूटी लेवल पे चैलेंज करा के एंड देन वी विल प्रोवाइड फंडिंग टू देम। देन ये एक ऐप का थोड़ा सा फीचर है कि क्रेडिट मॉड्यूल के अगर आपको स्टार्ट योर बिजनेस विथ मिशन युवा, तो आप सीधा जाइए, आपको 4 स्कीम नजर आएगा, नैनो एंटरप्राइजेज, MSME एंड एक्सेलरेटिंग एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेज एंड न्यू इनोवेटिव एंटरप्राइजेज। आप अप्लाई कर सकते हैं। AI बेस्ड DPR जनरेटर, आपको अपना DPR जनरेट करना है तो आपने अपना बेसिक डिस्क्रिप्शन दिया तो आप अपना DPR जनरेट कर सकते हैं। स्किल लर्निंग हब जो मैं बता रहा था, 25,000 वीडियोस है, 700 कोर्सेज है। तो हमने डिफरेंट जगह से, और इसमें तो मैं देख रहा हूं कई सारे एजुकेटर्स जो हैं, दे कैन ऑल्सो कम फॉरवर्ड, दे कैन ऑल्सो प्रोवाइड देयर कंटेंट जो हम अपने इस ऐप पे होस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है सक्सेस स्टोरीज, कैरियर काउंसलिंग, हमने जो है हमारे जो ऑफिसर्स कैरियर काउंसलर होते हैं, जो टीचर्स को कैरियर काउंसलर होते हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स जो है वी हैव प्रोवाइडेड, ताकि कोई भी उनको जो ऐप यूज कर रहा है वो उनको अप्रोच कर सकता है। देन गवर्नमेंट स्कीम एडवाइजर, कि अगर लोगों को स्कीम के बारे में जानना है, डिफरेंट अदर स्कीम, बी इट रिलेटेड टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और नॉट रिलेटेड टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। देन जॉब पोर्टल, कि अगर किसी एम्प्लॉयर को जॉब चाहिए, मतलब मुझे 5 लोगों की जरूरत है,
तो वो मिशन युवा पे रजिस्टर करके अपना वैकेंसी पोस्ट कर सकता है। एंड देन वंस पीपल जो भी यूथ मिशन युवा ऐप देख रहा है, he will see that कि अच्छा ऐसा इस तरह का प्राइवेट सेक्टर में अपॉर्चुनिटी he can apply, and once he will apply, his CV and his detail will reach to the employer can contact him, he can interview and then can if found fit he can take him on board. तो ये एक ऐप के फीचर्स हैं। देन ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। फॉर नैनो इंटरप्राइजेस, मतलब जो इसमें भी आप देखोगे दो है, इनोवेटिव बिजनेसेस एंड नैनो इंटरप्राइजेस, दो प्रॉपर वर्टिकल है। एक है जो रूटीन की एक्टिविटी, जो एक्टिविटी में ऐसा मतलब कि किसी को कोई बिजनेस शुरू करना है, डेयरी फार्मिंग करना है, पोल्ट्री करना है, रिटेल स्टोर स्टार्ट करना है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करना है, दैट इज फॉर बिजनेस। उसमें जो है आपको स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट है, बिजनेस हेल्प डेस्क है, मोटिवेटर है। बट अगर आपको कोई इनोवेटिव बिजनेसेस स्टार्ट करना है, उसके लिए हमने यूनिवर्सिटीज का रोल लिया है, जिसमें इनोवेशन हब जो है वो हमारा IIM जम्मू में है एंड इंक्यूबेटर्स एट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये है, दिस वर्टिकल विल बी applicable for the innovative businesses and for nano enterprises and MSMEs, the SBDU, BHD and motivator जो ग्राउंड ग्रास रूट लेवल तक जो जाएगा उसके लिए। ये दिस आई विल नॉट टेक मच। इसमें हमारे अब स्कीम की बात करें तो टोटल 4 स्कीम है। वन इज क्रिएशन ऑफ नैनो एंटरप्रेन्योर। इसमें क्या है कि आपका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो 10 लाख रुपए तक का हो सकता है, और आपको जो सब्सिडी है दैट विल बी 25% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर जनरल, और फॉर वुमेन एंड PWD इट विल बी 30% अप टू ए मैक्सिमम 1 लाख रुपीज, एंड देयर इज ए इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 5%। एंड देन क्रिएशन ऑफ इंटरप्राइजेज इन फोकस एंड सनराइज सेक्टर। अगर आपके 10 लाख से ज्यादा का प्रोजेक्ट है, कोई 50 लाख का कोई प्रोजेक्ट शुरू करना चाहता है, 1 करोड़ का है, तो उसमें आपको इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा, दैट इज अराउंड 6%। एंड देन थर्ड इज द बिजनेस एक्सेलरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंटरप्राइजेस, की कोई इंटरप्राइजेस ऑलरेडी चल रही है, उसको अगर एक्सेलरेट करना है, उसको मान लो 50 लाख की जरूरत हो गई, तो देन उसमें जो है 10 लाख से ज्यादा का प्रोजेक्ट होना चाहिए, तो उसमें जो है वो थर्ड में अप्लाई कर सकता है, एंड दैट इज उसमें जो है आपको 6% का इंटरेस्ट सबवेंशन है। एंड द लास्ट इज द क्रिएशन ऑफ न्यू इनोवेटिव एंटरप्राइजेस, जिसमें जो है आफ्टर द इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी चैलेंज देयर इज ए गवर्नमेंट सपोर्ट of funding, but that should have a matching funding with the private venture capitalist. And then there is a JK credit guarantee fund for all enterprises. This is the just the number जो हमने ऑलरेडी भी दिखाया कि हमें थोड़ा सा ये पुराना है, 54,000 है, जो कि अब 60-65,000 तक पहुंच गया है। कितने DPRs बन गए, दैट इज 35,000 डिस्ट्रिक्ट ने अप्रूव कर दिए। लोन कितने, अभी 8, ये 10,000 तक हो गया है। लोन डिस्पर्स ये 8,000 तक पहुंच गया। तो द नंबर इज इट इज इंक्रीजिंग डेली, एंड द प्रोजेक्ट सैंक्शन एंड लोन सैंक्शन एंड जो लोन डिस्पर्स आप देख रहे हैं विद इन 4 months, दैट इज 370 करोड़, दैट हैज रीच्ड 500 करोड़ नाउ दिस इज द कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग में जो है हमें उनको एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम, सेक्टर स्पेसिफिक कैपेसिटी बिल्डिंग, ये जो है सिखाना है। बट इसको सिखाने के लिए दीज आर वेरी क्रिटिकल कोर्स। आप इनको लोगों को आसानी से नहीं सिखा सकते, इसी वजह से यहाँ पे जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं उसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन कोर्सेज को रिमोट एरिया में थ्रू रिसोर्स पर्सन हाइब्रिड मोड में डिलीवर करना, दिस इज व्हाट वी हैव अडॉप्टेड। एंड इसमें जो है कैपेसिटी बिल्डिंग में लाइक हमारा अभी तक हमारे पास मोर देन 100 ट्रेनर है, एंड मोर देन 5,000 जो है ट्रेनिंग जो है कंप्लीट हो गया, और 2,000 लोगों की ट्रेनिंग चल रही थी। इसमें बैचेस क्रिएट करते हैं, एंड बैचेस क्रिएट करने के बाद जो है लोग उसमें कंप्लीट करते हैं, देन नेक्स्ट बैचेस होता है। तो अराउंड 60 आवर्स का कोर्स है जिसको हम इसमें डिलीवर करते हैं। देन दिस इज द मिशन युवा सेलर ऐप। दिस इज ऑल्सो लाइव ऑन द मिशन युवा ऐप, वेयर एनी डिपार्टमेंटल स्टोर जिसको अगर अपना ई-कॉमर्स सेल करना है, इसमें गवर्नमेंट बीच में नहीं है। गवर्नमेंट का रोल है टू कनेक्ट द कंज्यूमर विद द सेलर, एंड बाकी जो है वो उसको ऑनलाइन ऑर्डर करेगा, एंड देन ही विल पे इट डायरेक्टली टू द सेलर। इस पे थोड़ा मतलब इट इज वर्किंग, बट इसका एक टेकअप जो है दैट वी आर वर्किंग सो दैट इसका जो मोर एंड मोर टेकअप इंक्रीज हो। एंड व्हेन इट विल मोर मैच्योर, वी हैव डन 1 रीजनल ट्रेड फेयर एट कुलगाम, बट more such regional trade fair we have to do, and the business conclave at the divisional level. And then job matching platform, already I have explained, there in Mission U app there is a AI based CV generator है, job posting है। कोई भी employer अगर उसको कोई भी employees की जरूरत है, he can post job on the Mission U portal, and then जब वो job post कर देंगे तो वो लोगों को नजर आएगा एंड लोग उस पर अप्लाई कर सकते हैं। सो हमारा ये टारगेट है कि कम से कम बाई 2030 जो 1,37,000 इंटरप्राइजेस, जो हमारा नंबर इज नॉट इंपॉर्टेंट, हमें एक इकोसिस्टम क्रिएट करना है। हमें एक सिस्टम की, अगर किसी के पास वेग आइडिया भी है कि मेरे को एंटरप्राइज स्टार्ट करने हैं, मुझे इस तरीके का कुछ शुरू करना है,
तो उसको पता हो कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ मेरा डीपीआर बनेगा, मेरा आइडिया कहाँ मैच्योर होगा, फिर मुझे थोड़ा सा लर्निंग चाहिए, मुझे सीखना भी है। और मैं जितने भी इस तरह के कैपेसिटी बिल्डिंग के जो लोग क्लासेस होते हैं, लोग जनरली, इवन मेरा भी परसेप्शन ये था कि इन सब में कुछ होता नहीं है, टाइम पास होता है। तो मैं जब जाके लोगों को जब बात किया कि अगर आप ये बताइए कि आपको तो पैसे मिल गए हैं, अब ये 10 दिनों के लिए आपको यहाँ पे फंसा के रखा है, जबरदस्ती का कोर्स करा रहे हैं, तभी जाके आपको सब्सिडी देंगे, हम ये बंद कर देते हैं, पैसे मिल गए। लोग बोलते हैं नहीं, ये 10 दिनों से मुझे सीखने का भी मौका मिला। मुझे ये लगा कि अगर ये कोर्स से मैं और अपने आइडियाज को थोड़ा और चेंज करूंगा, मैं उसमें और रिफाइन करूंगा, मैं अपने ई कॉमर्स को थोड़ा और यूज करूंगा, मैं सोशल मीडिया को यूज करूंगा टू पॉपुलराइज माई सेल्फ। तो ये सब जो चीजें हैं लोगों को एक समझ आता है। और इसमें मैं एक बात बता रहा हूं, ये कैपेसिटी बिल्डिंग में हमें एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन नजर आया कि आइदर अगर हम 30 लोगों को इनरोल करते हैं तो उसमें से 15 लोग फाइनली कंप्लीट करते हैं, बट अगर जो बंदा 1 या 2 दिन आ गया वो कंप्लीट करता है, आइदर द पर्सन विल नॉट टर्न अप एट ऑल और इफ ही विल टर्न अप ही विल कंप्लीट। तो कोर्स का फायदा तो है, उसका जो रीजन है वो यही है कि वी आर नॉट रिलाइंग ऑन द इंस्ट्रक्टर, वी आर रिलाइंग कि एक क्वालिटी कंटेंट जो हमने अभी आइडेंटिफाई किया उसमें दैट इज अ डायनामिक, दैट कैन चेंज एनी टाइम, उसको जो है एक क्वालिटी कंटेंट, सेम कंटेंट अक्रॉस द यूटी सबको डिलीवर हो। उसमें अभी 10 कोर्सेज हैं ऑफ डिफरेंट डोमेन दैट वी आर डिलीवरिंग। देन नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट है, वो है, अभी तक तो हम इंटरप्राइजेस की बात कर लिए, इसमें भी कैपेसिटी बिल्डिंग का एक छोटा सा मॉड्यूल है जिसमें आपको कैपेसिटी बिल्डिंग करा रहे हैं, बट मिशन युवा में एक फीडर, मिशन युवा को फीडर करने के लिए स्किलिंग का भी एक कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप होने का काफी ज्यादा जरूरी है। स्किलिंग में भी आप एक कॉम्प्रिहेंसिवली स्किलिंग को कवर करें of all across the ages, across the barriers, across the things, that is also very important. Next slide, I have 2 slides for this, I will cover. ये अभी हमारा जो प्लान है, दिस इज अंडर प्रिपरेशन। जो मिशन युवा है दैट इज ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड, ऑलरेडी ऑन द ग्राउंड, पीपल आर वर्किंग, बट दिस इज व्हाट वी आर ऑलरेडी मतलब इन ए कॉन्सेप्चुअलाइज फेज एंड मोस्टली फाइनलाइज, बट यस देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप देयर। तो वन इज द फाउंडेशनल स्किलिंग इन स्कूल, कि स्कूल में आप किस तरीके से जो है स्किलिंग को इंट्रोड्यूस करें, क्या इंट्रोड्यूस करें स्कूल में, स्किलिंग का क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकता है। द सेकंड इज द कैरियर लॉन्च पैड फॉर यूथ। अभी क्या होता है कि आप जो सब लोगों को पता होगा, लोग अगर ग्रेजुएशन करना है तो कोई हिस्ट्री में ग्रेजुएशन कर लिया, कोई ज्योग्राफी में ग्रेजुएशन कर लिया, कोई पॉलिटिकल साइंस में कर लिया, और मानो ना मानो कुछ लोग इसको थोड़ा सा कंट्रोवर्सी ले सकता है, बट इन सब से हिस्ट्री ज्योग्राफी करने से आज तक किसी को जॉब लगा नहीं। कुछ लोग उसमें से प्रोफेसर बन गए, कुछ लोग पीएचडी करके बड़े बड़े प्रोफेसर बन गए, वो एक अलग बात है, बट मोटा मोटी मैं बात करूं तो 98% लोगों का कुछ नहीं होना है ये हिस्ट्री पढ़ के, ये सच्चाई है। उसमें से कोई बोलेगा हिस्ट्री पढ़ के मैं आईएएस ऑफिसर बन गया, बहुत अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मतलब कई सारे हिस्ट्री पढ़ के कुछ भी कर सकते हैं, दैट इज नॉट बैड, बट अगर मैं एक मास लेवल पे बात करूं तो हिस्ट्री के साथ आपको डिजिटल मार्केटिंग पढ़ने की जरूरत है, हिस्ट्री के साथ आपको वेब डिजाइनिंग पढ़ने की जरूरत है। आप जो है, और ये नहीं कि वेब डिजाइनिंग का 3 महीने का कोर्स कैप्सूल कर लिए तो आपको कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। आप जब ग्रेजुएशन में इंटर कर रहे हैं उसी दिन से आप इन सभी जो कैरियर लॉन्च पैड फॉर यूथ में बात करें, आप कोई ना कोई एक माइनर कोर्स सेलेक्ट करो, डिजिटल मार्केटिंग में करो, वेब डिजाइनिंग में करो, ऐप डेवलपमेंट में करो, आप फाइनेंस से रिलेटेड स्टॉक मार्केट के लिए करो। हमने 15 कोर्सेज किए और भी कोर्सेज, ये सब चीज डायनेमिक है, इस सब चीजों में हम फिक्स नहीं कर सकते चीजों, लेकिन आपको एक माइनर कोर्स करना जरूरी है। इवन जब मैं आईआईटी में था, आई वाज स्टडिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मेरे एक सेमेस्टर में 30 क्रेडिट होते थे, लेकिन एक क्रेडिट मेरा 6 क्रेडिट एक्स्ट्रा होता था कंप्यूटर साइंस का। हर सेमेस्टर में मुझे 6 क्रेडिट एक्स्ट्रा करना होता था, ताकि अगर मैं जो कंप्यूटर साइंस है वो उसमें जो है मैं उसको मुझे एक्स्ट्रा पढ़ना, बिकॉज अगर मुझे पता है कि कोर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और ये जो ट्रांसफार्मर और ट्रांसमीटर पढ़ के मुझे कुछ नहीं होने वाला। अगर उसमें मैं अगर जॉब जाने का सोचूं ना, आज के टाइम में मुझे 7-8 लाख रुपए से ज्यादा कोई नहीं देता। ये फैक्ट है। देखो, कुछ फैक्ट अगर एक्सेप्ट कर ले तो हमें अच्छा रहेगा, नहीं एक्सेप्ट करे तो अपने लाला लैंड में जी सकते हैं। एक्सेप्ट कर लेंगे तो हम अपना फ्यूचर जो है बेटर कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दिस कैरियर लॉन्च पैड फॉर यूथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट कि विद दिस कोर्सेज आप हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी करो, कोई बुराई नहीं है उसमें, बट यू नीड टू डू दिस माइनर स्किलिंग कोर्सेज। द थर्ड इज द इंडस्ट्री रेडी टेक्निकल स्किलिंग। जो हमारे आईटीआईज हैं, जो पॉलिटेक्निक्स है, उनको एक थोड़ा रिवैम्प करने की जरूरत है। एंड द लास्ट इज द अप स्किलिंग एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। अब जो लोग इन सब से निकल गए, स्कूल से निकल गए, कॉलेज से निकल गए, आईटीआई से भी नहीं है, पॉलिटिक, वो भी तो, उनको भी तो स्किलिंग की जरूरत है, तो देन उनके लिए फिर आप शॉर्ट टर्म स्किलिंग एंड ऑल दोस थिंग्स जो है आप कंटिन्यूअस बेसिस पे कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड।
अब इसमें जो है बस थोड़ा सा है कि इसमें जो फाउंडेशनल स्किलिंग में किस किस तरह के कोर्सेज इंपॉर्टेंट है, लाइक AI फॉर ऑल, कम्युनिकेशन एंड लाइफ स्किल मॉड्यूल, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इन सब का हमें अब मॉड्यूल्स बनाने होंगे, इसका वर्क मतलब कि मॉड्यूल से करिकुलम्स बनाने होंगे, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स करने होंगे, एंड देन आफ्टर दैट वी नीड टू स्टार्ट इम्पार्टिंग इट इन द स्कूल। सिमिलरली जो मैं बताया कैरियर लॉन्च पैड फॉर यूथ में माइनर कोर्सेज फॉर एम्प्लॉयबिलिटी, कॉलेज फिनिशिंग स्कूल, बच्चों को जब अगर कॉलेज से निकल रहा है तो उसको एक बेसिक पता होना चाहिए कि मेरे को वर्क कल्चर क्या है, उसको ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू, इन सब का मॉक प्रैक्टिस हो, सो दैट ही इज रेडी। कम्युनिकेशन स्किल, बात करने का स्किल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट विच इज रिक्वायर्ड। तो ये सारी चीज को देखते हुए जो है एक स्किल प्लान हम लोग वर्क करें। अगर आप लोगों को कोई और आइडियाज हो, बिकॉज दिस इज ऑलरेडी अंडर मीन्स कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, आप अपने आइडियाज भेज सकते हैं और अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं, सो दैट वी कैन इनकॉर्पोरेट इन आवर प्लान, सो दैट एक कॉम्प्रिहेंसिव स्किलिंग जो है वो हम कर सकें। एंड इसके जो लोग हैं उसमें से कुछ लोग तो वेज एम्प्लॉयमेंट में जाए, अच्छी बात है, बट फोकस जो है थोड़ा सा अब एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ज्यादा होना चाहिए। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीवन। Thank you so much, sir. Your words were really empowering. Now I request Chandasan to kindly come on the stage and felicitate our guest of honor. Meanwhile, can we have a big round of applause, please? Now I request Dr. S.K. Rathod, founder, chairman, and MD Sanford Group of Schools, to kindly receive the token of love, respect, and appreciation. Now I request Gagan Agarwal, Head Academic Partnerships, North and Central India, IBM Career Education. Sir, kindly accept the token of appreciation. Ladies and gentlemen, thank you so much.